Yeah. Yep. So, hi everyone. This is Avinash, Mumbaikar, Mumbai Marcher. So, yeah, thank you everyone joining. So, today the call is called Voice of Mumbai. So, by Mumbai March, we all are part of Voice of Mumbai, and you guys are also a part of Voice of Mumbai. So, I'm I'm a Mumbai Marcher. So, I'll tell a brief introduction about myself and Mumbai March, and we'll have few people speaking. So, and then at the end, we'll do a Q&A session. And if you have anything, you can put it in the chat box or you can raise your hand if there's something you want to talk about. So, yeah, so I'm Avinash. I'm an Mumbaiker. Did my electrical engineering from the US, now in Mumbai since 2010 and working actively for Mumbai since 2011. And yeah, been on and off, been to Bangalore also, travel down. Now a data analyst working for a startup. So, yes, so Mumbai March, give a brief introduction, started around 2011. So few people started walking at Sanjay Gandhi National Park, morning walkers, and they thought that let's do something. But what happened that day was they found a deer which had died, and figure out what happened, tried to find out what happened, and then found out that 3.5 kgs of plastic was found inside the deer. And they said, oh, plastic is a huge problem. So every Sunday after that, collected plastic, volunteers, no, started with very few people, two, three, four. At the end, collected 80,000 kgs of plastic. Then, so that was a huge success for us. And now plastic is banned at Sanjay Gandhi National Park. But still, we all have to be advocates whenever we see someone in National Park taking plastic. We ensure that they don't take it inside and leave it inside. Then then Mumbai March journey started from there. So working actively in Sanjay Gandhi National Park, then figured out that all this waste is going to the rivers. So we started a movement called River March, where we were working actively with schools, and that's where we started off. So we did our first river march at the Daisar River, where a lot of people joined us, about 1,600. And then from there on, we did more river movements. The year after, where we got across the four rivers, we did about 25,000 people. There were students, celebrities, NSS, citizens from all across Mumbai. So we got the media, everyone to help. And we felt we did good. And now we started working on that. The rivers have to be rejuvenated. There are four rivers of Mumbai. So then, yeah, so that's River March. And then we came in 2018. We found out that road traffic is a real problem. So road traffic was our road march movement, which started. We saw the missing links in Mumbai, and yeah, and they means they're huge because Mumbai traffic is a problem for us in day-to-day lives. And when we studied on the Mumbai DP plan, and figured out these missing links, and where we highlighted to the government and the BMC and the other related agencies that these missing links we open. Hopeful we're So far we've been successful at Thakur Village. One of the roads at Mahindra has been partially opened, and more soon to be opened completely. Then from there on, we also have another movement called Zero Slums. It's making Mumbai slum free, not removing the slums, but uplifting the people currently, because 65% of Mumbai are in slums. So yeah, so that's our third movement. And then fourth is Golden Sparrow, and that's the economy of Mumbai.
So here today, the purpose of the call is that you all have volunteered and signed up to be a volunteer for Mumbai March. Thank you for that. And so I'll introduce one of our Mumbai Marchers and co-founder Gopal Zaveri. So he's been actively working since 2011. He's the Mumbai hero in 2017. He has also been a part of the Mumbai Metro movement in 2014 and 13, where Mumbai Metro took them 11 kilometers. It took a very long time to do the first stretch, and they got Cooper. Now we're seeing in the next 10 years, we're getting 2A and 7 also, and many more lines are progressing faster. Then even the STP plants, which are being built on the river, have also been led by him. And also, we stopped Ganpati Visarjan at Sanjay Gandhi National Park overnight with a PI Island court, and that was led by him. So he is going to be, talking about the Mumbai Manifesto, Mumbai March Manifesto, and the Voice of Mumbai. थैंक यू अविनाश। आवाज आ रही है? Yes. थैंक यू अविनाश, थैंक यू श्वेता, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अविनाश ने लार्जली डिस्क्राइब किया कि मुंबई के जो भी डिफरेंट इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड द स्लम्स ऑफ मुंबई, जो बेसिकली जो इश्यूज है उसके ऊपर हम लास्ट 14 साल से काम कर रहे हैं, एंड नाउ वांट्स टू एक्सपांड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। सो इसके लिए मुंबई मार्च कोई भी संस्था नहीं है, एनजीओ नहीं है, इट इज अ पीपल्स मूवमेंट। लोग आते हैं, जुड़ते हैं और अपना काम, देयर इज नथिंग लाइक अ हायरार्की इन द सिस्टम। सो whoever join is today a Mumbai marcher. They are the voice of Mumbai. Basically we start a program from today with this, a voice of Mumbai. अभी वॉइस ऑफ मुंबई में आप हम सबको मिलके करना क्या है? अगर हम लोकसभा की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज देखे जो मुंबई को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करती है, कि बोरीवली साइड से गोरेगांव तक का, मलाड तक का एरिया है, नॉर्थ मुंबई है, देन नॉर्थ वेस्ट मुंबई है, देन सेंट्रल वेस्टर्न मुंबई है, साउथ मुंबई है, साउथ सेंट्रल है और नॉर्थ वेस्ट है। ऐसे करके 6 पार्ट के अंदर मुंबई को डिवाइड किया है। 6 पार्ट के 6 एमपीज है, और 6 एमपीज के नीचे 36 आपके एमएलए। सो बेसिकली ये जो वॉइस ऑफ मुंबई है, हमारी आवाज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि तक पहुंचनी चाहिए। और ये कैसे पहुंचाएंगे? सो देर इज अ डिफरेंट वे कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे, हमारी आवाज हमारी तरफ से वो हाउस में उठावे। एंड फॉर दैट, वन इज की राइटिंग द लेटर्स टू देम डायरेक्टली, इंक्लूडिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सेकंड है कि सोशल मीडिया पे आप लिखिए, उनको टैग कीजिए। सो इट इज नॉट अबाउट द ब्लेम गेम व्हाट हैपन, बट व्हाट कैन वी डू। जो हो गया है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि हमारी आवाज रिफ्लेक्ट होगी। अभी इन दिस कॉल इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर पॉइंट के ऊपर, हर एरिया के जाऊं, पर मैनिफेस्टो जो रफली ड्राफ्ट किया था टीम ने, वो मैनिफेस्टोज अविनाश आप तक पहुंचा देगा सबके पास में। तो ये मैनिफेस्टोज जो है, ये मैनिफेस्टोज में कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही कॉमन है अक्रॉस मुंबई, जिसमें से सबसे बड़ा पॉइंट है स्लम्स ऑफ मुंबई। 65% मुंबई आज स्लम्स के अंदर है। और ये जो स्लम्स है, ये ऑफ कोर्स जो मुंबई को चलाते हैं, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, दूध वाला, चाय वाला, या ड्राइवर्स, या आपके टिफिन वाले, ये सब लोग ये स्लम से आते हैं। आज हमारे बच्चों को सुबह से स्कूल बस लेके जाती है, वो भी ये स्लम्स, उसके ड्राइवर भी ये स्लम से आते हैं। पैरा टीचिंग का स्टाफ भी यहीं से आता है।
जो हॉस्पिटल्स का पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी यहीं से आता है। तो एक्चुअली दे आर द समवन जो इंडिया का ये फाइनेंशियल कैपिटल को राउंड द क्लॉक 24/7 चला। अभी उनकी डिग्निटी की बात करें तो इट्स एंटायर मुंबई की डिग्निटी की बात हो रही है कि जितने भी स्लम्स है जो अनप्लैन्ड है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि जितने भी रोड्स है वो ये स्लम्स के नीचे ब्लॉक है। तो जो बड़ी हाई राइज में रह रहे हैं या जिसके पास बड़ी कार है वो सोच रहे हैं कि ये स्लम्स की वजह से हमारे को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी डेवलपमेंट प्लान्स के 250 से ज्यादा रोड है। मुंबई मार्च का एक और कॉन्सेप्ट है लापता सड़क। तो ये जो 1967 का डीपीए, 1991 और 2014-34 के मोर देन 50% रोड जो आपके ब्लॉक्ड है, ये ब्लॉक वो मुलुंड हो, वो चेंबूर हो, वो घाटकोपर हो, वो साउथ मुंबई हो, वो सेंट्रल मुंबई हो, वो वेस्टर्न मुंबई हो, अक्रॉस मुंबई ये सारे रोड ब्लॉक्स। ये रोड ब्लॉक होने से मुंबई का जो डेवलपमेंट है वो अटक रहा है। दूसरा ये है कि ये जितने भी स्लम्स है ये मोस्टली ओपन लैंड जो गवर्नमेंट की थी उसके ऊपर है या इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड पे। जैसे कि 65 पॉइंट एवरेजली 18 लाख जो फेमस स्लम्स के झोपड़े हैं, जो मेजरली 5.5 लाख झोपड़े जो है वो एयरपोर्ट की लैंड पे है। वो पवनंस एयरपोर्ट हो या मेन सेंटा क्रूज या सहार एयरपोर्ट। उसके बाद करीबन 16,000 से प्लस झोपड़े नेशनल पार्क की लैंड पे। उसके बाद गणपत पाटिल नगर हो या मालवनी हो या दूसरे चारकोप के स्लम्स हो या दूसरे स्लम्स हो, वो जो है वो मैंग्रोव्स की लैंड पे। तो आज इसको छोड़ के धारावी है या आपके मानखुर्द के स्लम्स है जो मेजर पॉकेट्स है, ये सारे सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन। जब तक ये स्लम्स को रीप्लान वे से नहीं किया जा सकता, ना तो रोड मिलेंगे, ना संजय गांधी नेशनल पार्क की पूरी जमीन मिलेगी, ना मैंग्रोव्स की लैंड मिलेगी, ना ओपन ग्राउंड में। दूसरी चीज है ये अनप्लान्ड स्लम्स होने के कारण इनका जितना भी सीवर है वो डिस्चार्ज होता है नदी में, और नाले और नदी से ये जाता है मैंग्रोव्स में और मैंग्रोव से समुंदर। और जब ये समुंदर तक जाता है तो पूरे जो बीचीज है उसका भी जो वाटर क्वालिटी है या जो मरीन लाइफ पे उसकी इफेक्ट हो रही है वो भी हमारे साथ। तो आज हम जो 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो बात कर रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं कि एवरेजली 20 लोग रोज ट्रेन से गिर के मर रहे हैं, या आउट स्टेशन बस जो है वो सिटी के अंदर ही घूम रही है, 1,60,000 लोगों को लेके जाती है और 50 लाख लोगों को डिस्टर्ब करती है। तो ये जो हमारे ऑक्ट्रेस के खाली जगह हुई है दहिसर मुलुंड और वासी की, वहां पे ये क्यों नहीं अटक सकती, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पर आज क्या हो रहा है कि उस लैंड पे डिफरेंट वे से देखा जाए, और हम ये नहीं कर रहे कि ये स्लम्स को निकाल के आप कहाँ डाल सकते हो। हमने स्टडीज की है, यूएन हैबिटेट रिपोर्ट्स ये कहती है कि हर जानवर को अपना घोंसला बनाने का अधिकार है, और वो अधिकार उनका जो है वो अगर एक चिड़िया को और एक चूहे को मिलता है तो एक इंसान को मिलना ही चाहिए। सो दैट इज द बेसिक यूएन हैबिटेट रिपोर्ट है। अभी यूएन हैबिटेट रिपोर्ट्स के बहुत सारे फंडाज है कि भाई ये स्लम जहाँ बनते हैं उसके XYZ रीजंस है, उसको कैसे डेवलप किया जाए और आगे स्लम्स नहीं हो उसके क्या प्रिकॉशंस किए जाए। पर ये जो प्रिकॉशंस है वो हमने देखा कि परसों जब हाउस के अंदर योगेश सागर जी जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो बात की है वो क्लियरली बताती है कि स्लम्स निकलने के बाद भी SRA जो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी है, बेसिकली द कंप्लीट फेलियर, जो कि 30 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को घर दिया है, ये स्पीड से तो 260 साल से भी ज्यादा लगे। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हुए कि मुंबई के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है कि हम चाहते हैं कि मुंबई की ग्रीन लाइफ आवे, ट्रीज मुंबई के जिंदा हो जावे, मुंबई के ओपन ग्राउंड्स आवे, मुंबई का जंगल मिले, मुंबई की हिल्स, चाहे असलवा हिल हो, चाहे जागृति नगर हिल हो, चाहे चारकोप की हिल्स हो, चाहे दिंडोसी की हिल्स हो, चाहे घाटकोपर और भांडुप की हिल्स हो, या तो ये एनक्रोच हो रही है या ऑलरेडी एनक्रोच हो चुकी है। जो पूरी कॉन्क्रिटाइज्ड है, लैंडस्लाइडिंग से तो लोग मरते ही है एवरी ईयर, पर ये कॉन्क्रिटाइज होने से अगर आप असलवा से पूरी जो हिल देखते हो तो कॉन्क्रिटाइज है, और
जिसके कारण जो पूना पानी जो रुक रुक के आना चाहिए वो डायरेक्टली नीचे साकीनाका पे मीठी नदी के अंदर जाने के लिए आता है, पर वहां पे लॉक हो जाता है और वहां पे फ्लडिंग होता है। तो देर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर जो अनप्लान डेवलपमेंट की वजह से हुआ। वो अलग बात है कि क्यों हुआ, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे तब हिंदुस्तान से जो मेजर एरियाज निकाले गए, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजन। हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान के पार्टीशन रिलीजन बेस्ड हुआ, और बेसिकली देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा डेवलप्ड एरियाज बंगाल, पंजाब और सिंध, जहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन था, बिजनेस था, सबसे ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस होती थी, उसको इंडिया से निकल दिया, पर बच गया था सिर्फ मुंबई। और सारा माइग्रेशन और लोड इतना मुंबई पे था कि आज उसी मुंबई ने इंडिया को हेल्प किया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में। 25% इनकम टैक्स हम दे रहे, 28% रेलवे रेवेन्यू हम दे रहे, 6.14% जीडीपी हम दे रहे, 50% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इस लैंड से हो रहा है। पर जो कंडीशंस है, जो मैंने बताया कि 20 लोगों के मरने की, या जो स्पीड से सिटी जा रही है, तो इसके लिए डिफरेंट एरियाज में कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ये क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मुंबई जो मुलुंड से आगे का रीजन आता है, घाटकोपर और वो एरिया, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंग्रोव है भांडुप के, जहाँ पे बहुत ही माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं। तो वहां पे जो प्लान्ड है पंपिंग स्टेशन है मैंग्रोव के अंदर, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, वहां पे ट्री प्लांटेशन कैसे। और ट्री प्लांटेशन का मैं बताऊं कि वी आर ट्राइंग कि एवरी ट्री कम्स ऑन जीपीएस। अगर सब ट्रीज जीपीएस पे आ जाते हैं, जो बीएमसी ने ऑलरेडी सर्वे किया हुआ है पर पब्लिश नहीं कर रहे, तो जिसके कारण क्या होगा कि ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है कि आप लोग अगर इसको लिखना चाहते, इसमें बोलना चाहते, तो टेक एवरी ट्रीज ऑन जीपीएस, जिसके कारण कितने ट्रीज है मुंबई में, हर ट्री की क्या लाइफ है, कितना ऑक्सीजन देता है, उसका अनप्लान्ड कटिंग्स जो हो रहा है या उसको मारा जा रहा है एक्सीडेंटली बोल के, तो ये सारे चीज जब उसका जीपीएस टैगिंग होएगा, जिसके अंदर उसकी स्पीसीज, उसकी लाइफ, उसकी एज, तो ये डिटेल्स मालूम पड़ेगी। और ये भी मालूम पड़ेगा कि कितनी इंडिजीनियस है, कितनी नॉन इंडिजीनियस। जो ईस्टर्न मुंबई है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई है, वहां पे बैक में संजय गांधी का नेशनल पार्क का भी एरिया आ रहा है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से मुलुंड का बस स्टेशन है, वहां के मिसिंग लिंक्स है बेसिकली पवई और मुलुंड रोड के बीच में, चेंबूर साइन के बीच में। पार्किंग फैसिलिटीज है जो बीएमसी डीपी 2014-34 की है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई। घाटकोपर के आगे विद्या विहार स्टेशन है, उसके ऊपर का ब्रिज अगर कंप्लीट होता है, जो डीले 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 होते होते काफी साल हो गए, पर ये डीले होता है, तो घाटकोपर ईस्ट वेस्ट का ट्रैफिक में उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि स्लम रीडेवलपमेंट को कैसे किया जाए, तो दैट इज मोस्टली वी टॉक्स अबाउट द सिंगापुर मॉडल। 1965 में 98% सिंगापुर स्लम में था, आज 0.06% सिंगापुर स्लम में। सो ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ये एसआरए जो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर क्लियरली ये बात की गई है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिल्डर्स को बेनिफिट के लिए बनाया गया है, ना कि लोगों के लिए। जो काइंड ऑफ घर बनाए जाते हैं, घर की क्वालिटी है, घर का वेंटिलेशन है, नेचुरल लाइट रिसोर्सेज और बाकी का एरिया है, वो हिसाब से ये एक वर्टिकल स्लम्स है। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट द डिग्निटी ऑफ द पीपल, दैट वॉइस वी नीड्स फ्रॉम यू इन द एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। नाउ दूसरा है मुंबई साउथ और साउथ सेंट्रल को मैं साथ में लेना चाहता हूँ। साउथ मुंबई इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज एरिया, जो हमारा क्राफर्ड मार्केट से लेके आपका नागपाड़ा तक का, डोंगरी से लेके गिरगांव चौपाटी तक का, ये कंप्लीट 3 किलोमीटर बाय 3 किलोमीटर, 9 से 15 किलोमीटर के अंदर यू विल फाइंड द विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मॉल, जिसके अंदर आपको जवेरी बाजार भी मिलेगा, कापड़ बाजार भी मिलेगा, जिसमें चोर बाजार भी मिलेगा, रेड लाइट एरिया भी मिलेगा, जहाँ पे हमाम भी मिलेगा। तो वहाँ दुनिया के सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, चर्च भी मिलेगा, मॉस्क, जामा मॉस्क भी मिलेगा, वहाँ मुंबा देवी का टेम्पल भी मिलेगा। सो ये हेरिटेज हाउ वी कैन टेक इट टू द वर्ल्ड। सो इसके बारे में बात होनी चाहिए, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, दिस कैन बी अ बिग हब
जो आज बैकयार्ड ऑफ द सिटी बना हुआ है, जिसकी ब्यूटीफुल हेरिटेज है, ब्यूटीफुल इसके अंदर रिलीजियस स्पेसिस है, आर्किटेक्चरिंग है, वी हैव टू टेक दिस। साउथ मुंबई के अंदर पैनगंगा जो है, दिस इज कॉल्ड काशी ऑफ मुंबई, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द काशी ऑफ साउथ इंडिया। तो इसकी जो कंडीशंस है, अभी आपने देखा लास्ट वीक उसकी सडनली डेवलप करते वक्त सीढ़ियां तोड़ी गई। तो इसका भी जो एसेंस है, जो नेचर है वहां पे, 900 साल से लेके भगवान राम तक की हिस्ट्री है, और 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोन्स है। तो ये सारी चीजों को कैसे हेरिटेजली मेंटेन किया जाए। विलेज ऑफ मुंबई, मुंबई एक गांव का शहर था। तो साउथ मुंबई में खोतेचीवाड़ी है, गिरगांव है, गांव देवी है, मसगांव है, परेल विलेजेस है। इसको कैसे बचाया जाए। महालक्ष्मी का जो अनप्लान डेवलपमेंट कल नक्की हुआ है, ना मालूम इसमें कितना हार्डस्केप होगा, कितना कंक्रीट जाएगा, कि ये जो भी लैंडफिल है ये कैसे फिनिश किया जाएगा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और सॉल्ट पेन के बारे में बात की जा रही है। सॉल्ट पेन जो है, दैट इज डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, वेटलैंड्स है, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स और माइग्रेशन बर्ड्स आते हैं। वहाँ पे एक इको सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी है। तो इसको बचाया जाए। इफ इट इज नॉट इन यूज ऑल्सो, तो उसका बायोडाइवर्सिटी के साथ क्या यूज किया जाए। कुछ पार्ट को स्पोर्ट्स दिया जाए, कोई बायोडाइवर्सिटी के लिए ओपन रखा जाए। पोर्ट ट्रस्ट की लैंड है, वो भी सिर्फ किसी के फायदे के लिए, मॉल बनाने के लिए या किसी और काम के लिए नहीं होके, वो स्पोर्ट्स के लिए, पब्लिक यूटिलिटी के लिए। अगर आप देखोगे कि मुंबई के अंदर जितनी भी लैंडफिल एरियाज है, चाहे चर्चगेट से लेके दादर तक का, उस पे रेलवे बनी हुई है, या उस एरिया पे अपना रानी बाग बना हुआ है, या उसी लैंडफिल के ऊपर आपका रेस कोर्स बना हुआ है। उसी लैंड की सारी जमीनें ब्रिटिशर्स ने भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए यूज की। रोड्स जो बने हुए हैं, या जो वर्ली का जो रोड है, लवग्रो रोड उस वक्त था, अभी डॉक्टर सेंट एनी बसंत रोड है। तो ये सारे जो रोड्स है माहिम तक के, ये सारे लैंडफिल्स के ऊपर बने थे। तो दे यूज दिस ऑल्सो इन अ वेरी वेल। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है, उसकी जो बची हुई जो लैंड है, उसको अभी यूज करने का बात कर रहे हैं। तो अभी से वी कैन क्रिएट कि क्या यूज होना चाहिए, क्या डिटेल्स होनी चाहिए। यू पीपल ऑल्सो गिव आइडियाज, तो क्या होना चाहिए। और फॉर साउथ मुंबई हमारे साथ में लीड करने के लिए श्वेता है। सो विल स्टार्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस, विल गिव टू श्वेता। डेवलपमेंट ऑफ फोर्ट है साउथ मुंबई के अंदर, कि मुंबई के अंदर वर्ली, माहिम, सायन, धारावी, सिवरी, ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स है जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए। हिस्टोरिकल म्यूजियम्स के लिए, टूरिज्म के लिए। महाराष्ट्र नेचर पार्क है। बीडीटी चौल आज भी डेवलप्ड हो रही है, उसमें सेल पोर्शन जाता है, और बाकी के जो पोर्शंस है उसके अंदर सेल के लिए लोगों का इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सरप्राइज होगा कि 1897 में जब प्लेग आया तो बीआईटी बना था, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कि मुंबई का जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही अनप्लान था। तो ब्रिटिशर्सों ने 3 वे ऑफ हाउसिंग बनाया: अपर हाउसिंग, मिडिल क्लास हाउसिंग और लो इनकम हाउसिंग ग्रुप। तो अपर इनकम में जो हाउसिंग ग्रुप थे वो गिरगांव के आगे मलबार हिल की तरफ थे। मिडिल इनकम हाउसिंग ग्रुप हिंदू कॉलोनी, पारसी कॉलोनी या शिवाजी पार्क थे। और बीआईटी चौल थी जो वर्ली की या सिवरी की, ये लो इनकम हाउसिंग ग्रुप्स थे। तो इसको आप कैसे यूटिलाइज करते थे, वो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। लो इनकम हाउसिंग ग्रुप इज टोटली इग्नोर। आई कैन से मिडिल इनकम हाउसिंग ग्रुप इज ऑल्सो टोटली, क्योंकि आज बोरीवली, दहिसर और मुलुंड एंड चेंबूर इज नॉट अ अफोर्डेबल प्लेस टू स्टे। तो इसका कॉमन आदमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सिमिलरली आई कम टू अ धारावी। आई थिंक सो मोमिन भाई इज देयर टुडे, टॉक्स अबाउट धारावी। पर धारावी के अंदर आप देखोगे कि धारावी इज अ टोटली इंडस्ट्रियल slum, जिसको अगर ऑलरेडी वर्ल्ड हाईएस्ट डेंस पॉपुलेशन एरिया, और उसका जो सारा का सारा लोड है सायन, किंग सर्कल और माहिम स्टेशन के ऊपर है। अगर ये को अगर आप सेल के बजा दे के इसका पॉपुलेशन 1.5 और ट्वाइस बढ़ा दोगे, तो वो बढ़ा हुआ पॉपुलेशन का जो लोड है वो सेंट्रल मुंबई पे कितना खराब पड़ेगा। तो दे डोंट टॉक्स अबाउट दैट कि धारावी जो है हॉलिस्टिक अप्रोच से डेवलप होना चाहिए।
ना कि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए, पर पॉपुलेशन जो है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रोड्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बस इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही, तो दिस इज द एरिया वेयर पीपल हैज टू टॉक। सिमिलरली कोलीवाड़ास ऑफ कोलाबा, वर्ली, माहिम, धारावी, विच इज टोटली इग्नोर। इसको छोड़ के मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, जहाँ मीठी नदी है, मीठी नदी की टोटली जो वॉल है वो आरसीसी की है, चितले कमीशन रिपोर्ट में कहीं नहीं बोला हुआ है। मुंबई मर्ज ऑलरेडी फाइल्ड द पीआईएल इन बॉम्बे हाई कोर्ट, तो वहां पे भी एक एक्शंस चालू है। सो यू कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन टू दिस एरिया ऑल्सो। सो इसको छोड़ के वाकोला के मैंग्रोव है, माहिम के मैंग्रोव है, तो दैट इज इन अ वर्स्ट कंडीशन। तो ये एरियाज के ऊपर ऑफ कोर्स द हिल्स आल्सो कम्स इन दिस एरिया, लाइक असल्फा, कुर्ला। इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हुए सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड हाफली कंप्लीट पड़ा हुआ है, डीले डीले हो रहा है। मिसिंग लिंक्स जो है, जो बांद्रा टर्मिनस की तरफ है, एयरपोर्ट की तरफ है, तो ये काफी एरियाज मिसिंग है। पार्किंग फैसिलिटीज कहीं पे भी नहीं है और इम्प्रूव भी नहीं कर रहे। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर आप एसवी रोड देखोगे तो 6 ट्रैक का रोड है, तो दोनों साइड एक एक ट्रैक भी आप निकाल दो पार्किंग में, तो 30% ऑफ द रोड ऐसे ही चले जाता है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का या ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के सर्विस रोड आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। देर इज नो प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑन सर्विस रोड। तो और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में काफी स्लम्स है, स्पेशली नेहरू नगर और अराउंड एरियाज, जो एसआरए में तो कोई कंडीशन में नहीं हो सकते, क्योंकि एयरपोर्ट विल नॉट लीव दिस लैंड, रेलवे अपनी लैंड नहीं छोड़ेगी, इको सेंसिटिव लैंड है, नेशनल पार्क अपनी नहीं छोड़ेगी, मैंग्रोव के रूल्स नहीं होंगे। तो ये सारे एरियाज के ऊपर काम करना चाहिए। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट मुंबई में ओशिविरा रिवर है, ओशिविरा रिवर छोड़ के वर्सोवा, लोखंडवाला, लोखंडवाला लेक का भी आज एंक्रोचमेंट हो रहा है। सो आरए का जो बैलेंस लैंड है उसको हम कैसे फॉरेस्ट में ले सकते हैं, जोगेश्वरी महाकाली केव्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ एरियाज वेयर वी कैन वर्क इन द मुंबई नॉर्थ वेस्ट। Basically, there is a two tunnels who connect the Mithibai College to सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन और अमिताभ के घर के यहाँ से बांध के तरफ। अगर ये दो टनल्स जो है वो पवनंस एयरपोर्ट के नीचे से बन गई, सो इट विल बी द चेंज द सीनरी ऑफ ट्रैफिक सीनरी ऑफ द एंटायर वेस्टर्न मुंबई, स्पेशली द वेस्ट ऑफ अंधेरी टू बांद्रा। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है। सिमिलरली इन द नॉर्थ मुंबई रीजन कि दहीसर और पोईसर रिवर के ऊपर भी सेम कंडीशंस है। गोराई साइड पे आइलैंड के ऊपर भी मैंग्रोव्स है, वहां का कल्चर खत्म किया जा रहा है। द मनोरी एंड गोराई नॉट हैविंग अ बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्कूल्स एंड द हॉस्पिटल्स, dispensaries और इवन द एम्बुलेंस। तो दैट इज देयर प्रॉब्लम व्हाट दे टॉक टू अस। टार्जन हिल इज इन चारको एंड द दिंडोसी हिल, तो इसके ऊपर है। एंड लॉट ऑफ अदर आदिवासी रिहैबिलिटेशन इन संजय गांधी नेशनल पार्क। So these are the some of the areas of Tree Point I already told you. तो ये सारे एरियाज को द पीपल हैज टू राइट। एक गांधी का म्यूजियम है बोरीवली में, 17 एकड़ का कोरा केंद्र लैंड आपने सुना होगा, तो ये मैरिज के लिए दिया जा रहा है। पर यहाँ गांधी के म्यूजियम के ऊपर कभी भी काम नहीं हुआ। इफ साबरमती इज गेटिंग, तो यहाँ पे भी गांधी जी खुद रहे थे। इट कैन गिव्स अ बिग रेवेन्यू टू द बोरीवली वेस्ट एरिया if this area is developed as a। और आज भी गांधी का वहाँ म्यूजियम है जिसको खोला भी नहीं जाता है और ऐसे ही वर्स्ट कंडीशन में पड़ा है। अपार्ट ऑफ दिस, देर इज अ space to work for the BMC hospitals, BMC schools, crematorium, gardens, road qualities, ये तो फिर hawkers और रिक्शा स्टैंड। देर विल बी अ लॉट ऑफ अदर स्मॉल स्मॉल इश्यूज विच सिटी नीड्स। पर अगर हम लिखना स्टार्ट करते हमारे एमपीज, एमएलएस और हमारे लोगों को, सो दैट विल बी एंड द स्टार्ट मेकिंग ऑन द सोशल मीडिया अ वॉइस ऑफ मुंबई करके, तो यू कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग ईच अदर, वी कनेक्टिंग द रिंग। क्योंकि
बहुत कम लोग हैं हम, बट जितने भी है, थैंक्स कि इफ यू पीपल आर कमिंग, टेकिंग फॉरवर्ड, इसमें से कुछ चीजों के साथ आप एग्री नहीं होंगे, कोई चीजें आपके दिमाग में और होगी, यू कैन ऐड इन द मैनिफेस्टो वेर एवर यू लाइक टू एड इट, बिकॉज राइट वे तो अथॉरिटी विल डिसाइड कि व्हाट वी आर आस्किंग इज अ राइट और नॉट, but what we are asking is a basic thing. UN Habitat report is saying same thing, the DP plan of BMC is saying same thing. So that's, and the environment in general, what we talks about, so that is there. So I think so I give back to the Avinash. Yes, thank you. So yes, so we all got a great info about the Mumbai March Manifesto by Gopal and the journey. So right from all the six, for sure, right from South Mumbai to Mumbai North, and so this I've shared in the group in the chat. I've shared by email also as you have registered. So we can, yeah, Shweta, you have anything to say? Please. Sure. Yeah, yeah. So first I'd like to thank everybody जिन्होंने भी ज्वाइन किया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हमारा ये कॉल का पर्पस इसलिए था, मैंने अविनाश और गोपाल को बहुत परेशान किया कि हमने मैनिफेस्टो बनाया है, उसको बना के रख दिया है शेल्फ में, शेयर किया है कुछ कुछ, पर लोगों के पास पहुंचा नहीं है और आवाज नहीं आ रही है। तो सबका हमको हेल्प चाहिएगी सबकी, to make sure that this voice reaches our different areas. So Avinash and I had discussed that we will look for volunteers. So Avinash, do you want to call out one by one each area if anybody wants to volunteer? Yeah, if anybody in the on the call can put up their hand, and then we'll open up mic for you and you can tell us where you would like to volunteer in which area. So like I put up my hand for the South Mumbai, of course, considering I live here. And then we can work. If I have a team of people working with me, we can Yeah. work together and figure out how to go about different things. What will be a priority? हम पहले किस पे काम करेंगे, बाद में किस पे काम करेंगे, और हमें कोई एक्टिविज्म नहीं करनी है, हमें जाके ये काम करवाना है बेसिकली। सो एनीबडी एल्स साउथ मुंबई से और कोई है जो ये करना चाह रहा है साथ में मेरे? You can unmute yourself. I've given the access. If हाँ, someone wants to. तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें हेल्प करने। इफ नॉट साउथ मुंबई, आपकी जो भी एरिया हो, प्लीज रेज योर हैंड। So सो Manan has raised a point. I just shared in the chat. या, So Gopal is a point. So tunnels of Mitibai connecting Santa Cruz was originally considered for metro, but it was objected, and the overhead metro update, which actually brings more load on the reclaimed land. The biggest objection was taken by SVKM. and then you want to expand on that? Yeah, see, one thing is that we are not asking something new. It is 1991 and 2014 34 DP plan. If it is objection raised, then why they put it again on 2014 34 DP plan, which comes on 2018? So what is the alternative? Because Midhibai Road is goes to be dead, and the entire traffic is diverted towards the SV Road and jammed at the uh, Milan subway, and otherwise a small narrow lane of a Jew. Similarly, the roads comes from the Amitabh's bungalow, and I Love Mumbai is written there. They're also blocked. So whatever the things are there, they have to resolve it, because the entire area is developed as per the DP plan. Now, if they think ki there is a limitations of technology, I don't think so. If there is a limit, if somebody is SVKM is objecting, that doesn't mean ki if one or two organization objecting, so you will change the entire DP plan. Because here the Prakash Surve objecting about the DP plan of Kandivali East, and he was working for 2 years, and finally the Vidhan Sabha ignored it and say ki DP plan change nahi ho sakta. So if DP plan is there, which is passed in Vidhan Sabha, and it is again from 1991 tunnel, it shows in 2014 34 in 2018. So we are okay. We had a meeting with Vellarasu also, additional commissioner. He said ki they are proceeding further with this. Even the issue is raised in the house by the Aditya Thackeray. After meeting with us, he raised the issue similarly by the Aditya Thackeray. So whatever way, if it is not possible, then
It's the duty of a department, BMC, MMRD, and the state government and the other department, how to resolve the traffic between the Santa Cruz to Parla. Of course, there is a other traffic which goes from this area. So that's what I want to say. Ki we are not demanding anything. That is already in their plan. What we say is ki either you do the things or you give the alternate. Yeah. So everybody now, I think it's a little bit open forum. Please feel free to turn on your videos and unmute yourselves and speak if you want to speak something. Put your hand up. कोई कुछ बोलना चाहे तो Yeah, प्लीज. so one more question came up by Siddharth. So what, good question, not a wrong question. So what is exactly the DP plan? So Mumbai DP plan is a development plan of Mumbai. It is basically all our roads, buildings, everything, means whatever development has to happen in Mumbai is as per the plan. It's there on the BMC app. You can search for it. Your area, you can come to know what is. Yeah, I want to add one thing. Now the last few days, BMC dismantle that app. App start नहीं हो रहा है अभी. तो वन थिंग, द डेवलपमेंट प्लान जो है वो हर सिटी का होता है. और आपके जो भी घर बना हुआ है, आपके जो भी जोन्स है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशन जोन्स, रोड की प्लानिंग, पोर्ट की प्लानिंग, स्कूल्स कितनी होनी चाहिए, आपके रेलवेज कहाँ से जाएगी, आपका एयरपोर्ट कैसे होगा, आपकी ग्रीनरीज कहाँ पे होगी, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा, आपके इको सेंसिटिव एरियाज को कैसे ख्याल रखा जाएगा. तो ये सारे एरियाज का एक कलेक्टिव प्लान बनता है. तो दैट इज अ डेवलपमेंट प्लान ऑफ द सिटी. हर सिटी का डेवलपमेंट प्लान होता है, हर टाउन का होता है. मुंबई का भी वैसे डेवलपमेंट प्लान. Okay. Yeah. So it's open forum. Everyone can switch on their video, voice, anything you want to share. So I want to just clarify a few things. My sure. name is Deepti. Hi. तो ये मैं एक्चुअली मरोल में रहती हूँ एंड वेरी क्लोज टू द मीठी रिवर. तो आई एम जस्ट वांटिंग टू नो कि जो ये आरसीसी वॉल बना है तो मतलब व्हाट इज इट दैट वी नाउ नीड टू सॉर्ट ऑफ आस्क फॉर व्हाट इज. और काफी मैंने ट्रीज देखा है मतलब कटे थे उसकी वजह से. तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी yeah anxious and sad to see that happening. So what is it now that we should be writing about? Yeah, Sweta, you are answering or I should? Go ahead, Gopal. Dipti and I know each other, so I can work with her. Okay. दीप्ति जी, आप जो वॉल देख रहे हो ना, दैट इज, वो वॉल जो है वो नदी को सिटी से डिस्कनेक्ट कर रही है. और वी आर फाइटिंग विद फॉर दिस वॉल कि ये वॉल होनी नहीं चाहिए. क्योंकि ये वॉल जो बनी हुई है, वो वॉल के वजह से जो नदी का जो वाटर ग्राउंड के अंदर जा रहा है, के साइड से जा रहा है, वो भी खत्म हो रहा है. दूसरा है, ये वॉल की वजह से एनिमल्स और रिवर का कांटेक्ट भी खत्म हो रहा है. तो बेसिकली आप देखोगे बहुत सारे वीडियोस है, लेवी बोलते हैं यूएस में इसको. तो ये जो रिवर लेवीज है, वो एक टाइम पे वर्ल्ड वाइड ये सोचा जाता था कि रिवर के बाजू में लेवी बनाने से या वॉल बनाने से हमारा जो सिटी का फ्लड है वो कम हो जाएगा. बट ये फैक्ट आफ्टर लुकिंग एट द सेवरल वीडियोस यू कैन चेक ऑन यूट्यूब कि इसके कारण सिटी का फ्लड बढ़ा है. और यही मुंबई में भी हुआ है 2006 के बाद. पर ये लोग एक कमीशन रिपोर्ट का नाम लेते हैं, चितले कमीशन रिपोर्ट. उसमें कहीं नहीं लिखा है, खाली ये लिखा है कि जहां जहां पे लैंडफिल्स है, कि लैंडस्लाइड होने का नदी में पॉसिबिलिटीज है, वहां पे वॉल बनाई जाए. तो वो गैबन वॉल भी हो सकती है, ड्राई वॉल भी हो सकती है, कंक्रीट वॉल. और वो 45 डिग्री में होनी चाहिए कि कोई भी एक जानवर को या एक एनिमल को पानी भी पीना हो तो नदी में जा सके. और नदी के अंदर एक अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है, बैक्टीरियाज होते हैं, ग्रीनरी होती है, जो अपने आप पानी को क्लीन करती है, एनिमल लाइफ बनाए रखती है. तो ये सारी चीजें ये वॉल से खत्म हो चुकी है. वी फाइल्ड द पीआईएल. बहुत सारी पीआईएल्स है जो मुला मुठा पूना की है और यमुना दिल्ली की है, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर्स तो दिए हैं, पर यहाँ पे
अपने को अभी तक ऐसा ऑर्डर नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक बीएमसी ने 8,000 करोड़ रुपया इसके अंदर यूटिलाइज किया है, क्योंकि 4 रिवर छोड़ के मुंबई में 600 किलोमीटर के नाले हैं, वो भी कॉन्क्रीटाइज किए पूरे। और ये नालों में मेजर नालाज एंड माइनर नालाज, अगर दो को डिवाइड करते हो आप, तो एटलीस्ट मेजर नालेज भी खुल जाने चाहिए। माइनर नाले तो आई डोंट थिंक कि क्या करेंगे ये लोग, बट द इतना अगर खुलता है तो इसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो पर्कोलेशन होता है वो पर्कोलेशन बढ़ेगा, तो सिटी का ग्राउंड वाटर जो अंदर जा रहा है, जैसे आप चेन्नई और बैंगलोर की हालत देख रहे हो, वो मुंबई की नहीं हो। इसके कारण ये कंक्रीट वॉल्स और रिवर के अंदर जितना भी कंक्रीट है निकालना चाहिए। हम जितना भी नदी की मांग करते हैं, ये लोग उसको ब्यूटिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, दे डोंट थिंक अबाउट द इको सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रिवर। सो दिस इज बेसिकली, ये वॉल के लिए आपने अथॉरिटी को, एटलीस्ट स्ट्रॉम ड्रेन वाटर अथॉरिटी है, उसको लिखना चाहिए, सोशल मीडिया पे ये फोटोज बताने चाहिए कि ये नदी की जो हालत है वो क्या हो रही है। आई थिंक सो आई क्लियर, दीप्ति। हाँ, मतलब मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला गोपाल जी, लेकिन मुझे ये लगता है कि मतलब जैसे श्वेता, दैट जेंटलमैन आनंद पेंढरकर हैड कम, राइट? या ही इज एन इकोलॉजिस्ट। तो उनका इस चीज पे क्या व्यू है? मतलब ऐसे ही हम लिखना शुरू कर दें, हम एकदम ले पीपल हैं, हमको थोड़ा सा कुछ एक एक्सपर्ट ओपिनियन अगर मिले और उस हिसाब से फिर हमें समझ आए कि हमारी आस क्या है। अब अगर 8,000 करोड़ ऑलरेडी इस पे स्पेंड हो चुका है, तो अब हम क्या मतलब इज डिमोलिशन द बेस्ट वे फॉरवर्ड, और इज देयर समथिंग एल्स which So an expert would We suggest? are demanding demolition in the yeah, so court. I can share with you offline whole bunch of work that has already happened, which will give you all the information that you need to know, at least Okay, before you can great, write a great, letter, right? perfect, yes। But मतलब we खुद that's को एक exactly कन्विक्शन होना चाहिए ना कि हाँ, हाँ मैंने समझ के फिर लिखा है, like that's हाँ what I needed। राइट राइट। पर ये पर्पस कॉल का यही है कि हम लोग तो कर रहे हैं, बट वी वांट मोर एंड मोर पीपल। More आप भी people, yeah। बुलाओ, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, जितना अपना कलेक्टिव एक्शन होगा, 100 लोग हाँ, की साइन होगी एक लेटर पे, 1000 लोग की साइन होगी, 2000 लोग की साइन होगी, वो लेटर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दैट्स द होल आइडिया। राइट राइट, एंड वी आर ठीक है हैप्पी टू तो एजुकेट कि ये पर्पस कॉल का यही है कि जितने लोग जो perfect। हाँ। सो अविनाश जस्ट मेक अ नोट, दीप्ति को विल ऐड इन द ग्रुप फॉर द Yes, yes. पीआईएल का ग्रुप ना। हाँ Yeah. और एक दूसरा जो मुझे मतलब एक जनरल मेरा इंटरेस्ट एरिया है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड, मतलब जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, तो उसके लिए अगर कुछ भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो या एग्जैक्टली क्या करना है, वो भी प्लीज इफ सो दैट कैन बी शेयर विद मी। मेरा सजेशन ये होगा, दीप्ति, लुक एट द manifesto which has been shared, right? हाँ हाँ And realistically you can work अपने जहाँ एरिया में आप रहते हो ना, वो एरिया हाँ, में इफेक्टिव हो सकती है, या फिर जहाँ आप काम करते हो। इफ राइट, यू वर्क इन कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया, प्रोडक्टिव नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा। ट्रू So ट्रू, look at the activities happening in your area and how they match with your interest now, and ठीक then है, you can try to make a lead on one of those things. Like you can become a lead on one of those things and drive फाइन, those things. Yeah. थैंक And यू, we'll give you all the background support. जो भी like श्योर political जो, because गोपाल जी ना, उनको बहुत experience है, मुझे तो इतना नहीं जितना उन लोग को है. So we will get you all the support needed. श्योर। Yes. Anyone else wants to speak? Harshil has put a Yeah, question in I the saw chat. that. हाँ. श्रीनिवास राव, आप अनम्यूट में कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ठीक। Actually कुछ लोग नए लग रहे हैं, मुझे तो नए लग रहे हैं, मे हाँ, बी बीन पहले से। सोनिया जी, अजीत कुमार बिरनले, अजीत रेशमा। कुमार comes to our monsoon festival. ओके हाँ, तो आप Hello. लोग बोलना चाहेंगे तो ये Good evening, Siddharth Vishwakarma, हाँ my side. Yes, यस Am I audible clear? yes, yes. एब्सोल्युटली यस। एक्चुअली मैं नॉर्थ मुंबई में रहता हूँ, कांदिवली ईस्ट एग्जैक्टली मैं पोईसर में रहता हूँ। आप लोगों को पोईसर अच्छे से पता होगा, मीठी मीठी नदी नाला है वहाँ पे। जो बीएमसी की तरफ से जो आरसीसी वॉल जो बने हुए हैं, अ, इससे एक्चुअली एक फायदा ये है कि यहाँ पे जितने जो स्लम्स एरिया है, अभी मैं भी स्लम्स में चौल में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे आरसीसी वॉल से फायदा ये हुआ है कि जितने भी स्लम्स एरिया जो एकदम नाली के साइड में रहते हैं ना, वो लोग वहाँ पे गार्बेज डाल के उसी के ऊपर अपना
उसी के ऊपर अपना घर बनाते जा रहे हैं। तो ये आरसीसी वॉल ना बहुत मतलब फायदा कर रहा है, क्योंकि ये कोई उससे एक्सपांड नहीं हो पा रहा, और ये जो नाला है ना ये छोटा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसके पहले जो आरसीसी वॉल नहीं था ना, तो फिर जितने भी यहाँ पे स्लम्स में साइड में रहते थे, वो लोग वहीं पे अपना गार्बेज डालते थे और उसी के ऊपर अपना कंक्रीट डाल के, सीमेंट डाल के अपना घर बनाते रहते थे। तो ये स्लम्स एरिया में आरसीसी वॉल जो है ना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर इस स्लम्स एरिया से हट जाएगा तो जितने यहाँ पे मीठी नदी है, ये जो अपना कोइसर का नाला है ना, ये बहुत छोटा होते जा रहा है। सी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जो बोल रहे हो कि जितने भी जो लैंडफिल्स है, ये पर्पस शायद बीएमसी ने ये सोच के भी बनाया था, क्योंकि चितले कमीशन रिपोर्ट के अंदर वो क्लियरली लिखा हुआ है। पर देर इज अ हाँ दो डिफरेंट इश्यूज को हम एक साथ में टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नदी एक अपनी जगह पे है, और हाँ स्लम एंक्रोचमेंट एक अपनी जगह पे है। तो आप अगर नदी को टैकल करते हो तो जो कंक्रीट है वो नदी को खत्म कर रहा है, जो नदी को आप नाला बोल रहे हो। पोईसर 1952 में बहुत अच्छी नदी थी, और वही नदी से पोईसर विलेज, कांदीवली विलेज, आज भी कांदीवली विलेज में खेती होती है, आप वेस्ट में जाओगे तो। करेक्ट। वो स्टार्टिंग से, वहाँ स्टार्टिंग से पहली बार जहाँ से ये नदी फॉर्म हो रहा है, आई थिंक जो क्रांति नगर साइड से कहीं से फॉर्म हो रहा है। हाँ, पर मैं कांदीवली वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कांदीवली हाँ हाँ। विलेज है, दानुकरवाड़ी अच्छा, के कांदी पीछे। धानु परवाड़ी, करेक्ट। तो आज भी कुछ लैंड वहां पे बड़े एरिया में पड़ी हुई है, पोईसर जिमखाना के पीछे। तो जहां जहाँ पे भी अगर जरूरत है दीवालों की, तो वो हाँ अलग टेक्नोलॉजी से बन सकती है। क्योंकि अगर जमीन के अंदर जो दीवार आपको जो ऊपर दिख रही है, वो नीचे पोईसर नदी के नीचे भी है, बनी हुई है। क्योंकि हाँ, दीवार कोसर के नदी के साथ में नीचे भी उसका साइड से फॉर्म फाउंडेशन होती भी है। होता है। करेक्ट तो करेक्ट। वो फाउंडेशन कंक्रीट का होता है, और वो फाउंडेशन की वजह से जितना भी बारिश का पानी आता है वो लैंड के अंदर नहीं जा रहा है। और आजू बाजू का जो पूरा एरिया है, जितने भी बिल्डिंग्स है, वो पंपिंग में से या कुएं से पानी तो निकाल रहे हैं। पानी पूरा मुंबई कॉन्क्रीटाइज हो चुका है। तो कॉन्क्रीटाइज हो चुका है, तो जमीन के अंदर पानी जाएगा किधर से? आप मुंबई का टेम्परेचर देख रहे हो, बढ़ रहा है। आई गॉट योर पॉइंट कि वो जो एंक्रोचमेंट वो बढ़ रहा है, पर एक चीज ये है ना कि आपके पास, हमारे पास अगर कोई रिसोर्सेज नहीं है तो आउट ऑफ बॉक्स सोच के उसका कुछ भी नया चीज बनाना पड़ेगा। पर आप नदी और आपका एंक्रोचमेंट दोनों साथ में लेने जाओगे, तो ये होगा कि भाई आपके पास एक बहुत अच्छा शेर है, उसको आप पिंजरे में बंद करके रखो, और उसको जंगल में नहीं छोड़ो। तो जंगल में नहीं छोड़ोगे तो हम सोचेंगे बाहर छोड़ देंगे तो उसको लोग मार डालेंगे। पर अगर अंदर रखेंगे तो टाइगर का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बिकॉज ये मुझे इसके लिए एक्चुअली इसलिए पता है, ये जहां तक आप बता रहे हैं ये चौल एरिया के लिए तो बहुत इसके लिए ना एक बीएमसी को अच्छा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरे ग्रैंडफादर नहीं, पता वो तो इसीलिए स्टार्टिंग से इसीलिए यहाँ हम पे ये, ही है। इसीलिए 4 साल से करेक्ट कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, गंगा मिनिस्ट्री में भी हम दिल्ली जाके आए हैं। पर इसका जो पर्पस है, लेट्स होप कि बीएमसी और महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्योंकि जो 4-5 दिन पहले मुला मुठा में भी यही चीज के लिए ऑर्डर दिया हुआ है, बहुत अच्छा ऑर्डर है कोर्ट का, कि 1 भी किलो कंक्रीट नदी के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस टाइप के अगर ऑर्डर्स है, तो उसके हाँ, बाद ये बेटर अल्टरनेट रहेगा बीएमसी फिर। क्या तैयार करती है तो फिर अपन देखते हैं। ये तो और अभी अपना अभी, एक सोच है। हाँ, अभी रिसेंटली यहाँ पे पोईसर डिपो के पास में जो पोईसर जो नदी है, इसी के ऊपर अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। एक्चुअली उसको उसका 1 से 2 साल का टाइम था, लेकिन वो 2 साल के ऊपर हो गया, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ है। उसका काम भी मतलब 1 ईयर का, 2 से 3 महीना बस काम चलता है, उसके बाद उसका काम बंद हो जाता है। उसका भी यही कुछ ऐसा टॉपिक, प्रॉपर हाँ, बीएमसी ये से एक यही बार हमने टॉपिक पे। इंक्वायरी किया था। हम्म। एक्चुअली यहाँ पे पोईसर में डीवीएम हाई स्कूल करके है, हम्म। जस्ट पोईसर नदी के एकदम साइड से ही है। हम्म। हर बारिश में अगर हाफ एन आवर से ज्यादा बारिश हो गया तो फटाक से यहाँ पे पानी भर जाता है। ओके। और वो जो पोईसर जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उसकी वजह से हम्म। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उसका सिर्फ 2 साल का ही आई थिंक सो टेंडर था। उसका दो नेक्स्ट साल वीक ऊपर में हो गया अगर आप है। कभी भी अवेलेबल हो, हमको बुला ले हो, हम लोग आ जाएंगे। विल चेक क्या हो सकता है, विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और वो जगह पे क्या प्रॉब्लम। ओके ओके, श्योर श्योर।
तो हम लोग ज्यादा क्लोजली डिस्कस भी कर पाएंगे और उस जगह का इश्यूज वापस अथॉरिटी को रिमाइंडर और क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी लिख पाएंगे। करेक्ट। या ओके। I've shared my number. If yeah, you can call next week and we can meet. Number share कर दिया. And so Harshil has also shared that thanks a lot for this opening this presentation. I'm available during the weekends and up for contribution by volunteering and I can also help. तो हर्षिल को भी contact कर लेंगे. Yes, he's a part of Shweta's team, that Mumbai Donut Collab. Harshil is from my Jagrati Yatra team. Okay, Jagriti. Yeah. And Manan is from Mumbai Collab team, and Manan also wants to contribute. So we can. Okay, awesome. that's great, that's great. Yeah. So For I 3 hope minutes still to everybody go. wants to. No, I Sorry. guess yeah, so anyone else और किसको कुछ बोलना है? So I will share this Mumbai March manifesto by email if you have not got it. Also, We'll also share this recording, Avinash, so that they can share with their friends and yeah, family. सबको बोलिए, yeah. and they should reach out to us.